सभी को जय यीशु। मेरा नाम रोशन एक्का है। मैं डॉन बॉस्को क्वारमुंडा पेरिस उड़ीसा से हूँ। मैं आज सन फ्रांसिस डी सेल्स के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं उनका जीवन से काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ। उनमें से 2 पॉइंट आप लोगों को कहना चाहता हूँ। पहला बात ये है, वो कहते हैं कल की चिंता ना करो। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कई बार हम लोग कल की चिंता की ओर बहुत ध्यान देते हैं और ऐसे में हमारे दिन बीत जाता है। तो सबसे अच्छी बात और खुशी बात यह है कि सन फ्रांसिस कहते हैं जो भी हमारी चिंताएं हैं, कल की चिंता, उसको हम लोग ईश्वर की ओर समर्पित करें, क्योंकि सृष्टिकर्ता वो हैं, वो पहले से ही तय करके हमें भेजे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोग ज़्यादा चिंता ना करके ईश्वर की ओर अपनी सारी चिंताओं को समर्पित करना है। और उनका दूसरी बात जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो कहते हैं अपने खामियों पर परेशान ना हो। हालांकि हम लोग यूथ लोग हैं, हमेशा अपने अंदर जो भी खामियां रहते हैं उससे परेशान होते हैं और दिन भर यही सोचते हैं कि ये खामियां अपने अंदर है, जो कि हम लोग दूसरे से अच्छा नहीं बन पा रहे हैं, और इसी चिंता में हम लोग दिन भर डूबे रहते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसमें भी संत फ्रांसिस कहते हैं कि अपना जो भी खामियां हैं उसको दूर करने का हल निकालना है और ईश्वर को समर्पित करना है, ना कि उसमें डूबे रहना है। अगर हम लोग डूबे रहेंगे तो ऐसे ही दिन रात ढलते जाएगी और हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये 2 बात मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आप सबों के बीच में शेयर किया। थैंक यू और जय यीशु। Hi everyone, this is Isha Rajan from Saints Peter and Paul Parish, New Delhi, and I am here today to share my thoughts on how Saint Francis de Sales is an inspiration, not just as a saint but also as a common person who has worked extraordinarily for some great causes, and that too in some very vulnerable situations. So we have been discussing this a lot, and of course we have been sharing a lot of prayers and information to understand and know Saint Francis de Sales. And now we all know, we somewhat have an idea of how he was born and how he was raised and how he became a saint, about his brilliant intellect, about his charming and serene attitude, about his very purposeful nature. But one characteristic which has influenced me as a person, or I should say, which influences a lot of people, which has influenced a lot of people, especially of my generation or this generation, is that he was someone who was consumed with God's love. And isn't that the state we all desire? The state of being consumed, completely consumed with God's love. Now, this also reminds me of an anecdote which a father once shared during his homily. I was a little kid, and I remember him telling us that Saint Francis de Sales was appointed a bishop at a time of chaos, and it was a time of a lot of problems and complexities. There were a lot of religious divisions going on. So during all these chaos and problems, he had an approach which was really gentle, which was empathetic and full of compassion. And he dealt with all these problems with an Everest of patience. And his approach was really gentle, and probably this is also one of the reasons behind him being very much popularly known as the gentleman saint. Now, I'd like to end this with a quote which Saint Francis de Sales said, that what we need is a cup of understanding, a barrel of love, and an ocean of peace. So I genuinely hope, wish and pray that we all experience this spirit of optimism, hope, freedom and confidence in God's love, for which Saint Francis de Sales is very popularly known. And may all of us be filled with this spirit, and may we all find peace and love. Thank you. सबों को जय यीशु। मेरा नाम है नीलेश मुलकड़ा, मैं बरियातू पारिस से हूँ और मैं यहाँ का यूथ प्रेसिडेंट हूँ। तो सबसे पहले मैं हमारे सन फ्रांसिस डी साल के बारे में
बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी चीजें जो मैंने सीखा और अपनी जिंदगी में मैं जिसे लागू करना चाहता हूँ, उन सब चीजों को मैं अभी बोलना चाहूंगा। तो मैंने सैन फ्रांसिस डी साल की जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है उनका चाइल्डहुड, जो कि हो जाए उनका बचपन। दूसरा है उनका टीनेजर वाली जिंदगी जब वो जवान थे, और तीसरा जब उनका बुढ़ापा। तो सबसे पहले हम चलते हैं उनके बचपन वाले टाइम। वो बचपन में बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही पोलाइट थे, और वो बहुत ज्यादा फोकस्ड थे। उनके इंटेलिजेंट होने के कारण ही उनके माता पिता चाहते थे कि वो वकालत की पढ़ाई करें और पॉलिटिक्स में घुसे। वो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड थे। यहाँ पर हमें फोकस्ड रहना सीखना होगा। सबसे पहले उनके जो बचपन से हमें जो सीख मिलती है वो है फोकस्ड, क्योंकि वो बचपन में बहुत ज्यादा फोकस्ड थे। वो प्रभु यीशु से प्रार्थना करते रहते थे और अपना गोल सेट कर चुके थे कि मुझे क्या बनना है। बचपन में हम कभी एक दिन बोलते इंजीनियर, तो कभी दूसरे दिन डॉक्टर, तो कभी पायलट, बट वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा फोकस्ड थे। वो चाहते थे कि वो प्रभु यीशु के कदमों चिन्हों पर चलें और उनके वचनों का प्रसार करें। यहाँ पर हमें फोकस सीखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं हम उनके सेकंड हिस्से में, मतलब वो है उनके टीनेज वाली लाइफ में। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। वहां पर एक मैं यहाँ इंसिडेंट बताना चाहूंगा जब जो हुआ था हमारे सैन फ्रांसिस डी साल से के जीवन में। तो एक बार हुआ क्या, वो हॉर्स राइडिंग पे गए थे, अपने पिताजी के साथ हॉर्स राइडिंग सीख रहे थे। इसी दौरान वो 3 बार गिरे, और तीनों बार गिरने के दौरान उनके पास जो स्वॉर्ड थी और स्वॉर्ड को रखने वाली जो कवर थी वो इस प्रकार जमीन में गिरी और गड़ गई जैसे कि वो क्रॉस हो। तो इसे सैन फ्रांसिस ने एक साइन समझा, और इस साइन को समझते हुए मैं इससे ये सीख रहा हूँ कि हम युवाओं को भी एक साइन लेके चलना है, जिसे हम फॉलो कर सके, उस साइन को हम समझ सकें और अपने जीवन में जो भी गोल सेट किए हैं उस तक पहुंच सके। ये साइन हमारे यूथ गण के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे हम फॉलो करते हुए भटकते नहीं है, हमें भटकने नहीं देता है। सैन फ्रांसिस के जीवन में हमें और भी चीज टीनेजर में सीखने को मिलती है, वो चैलेंजिंग स्पिरिट। वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थे। हुआ ये कि वो जब प्रीस्ट बने तो एक जगह था जिसका नाम था शेवरले। वहां पर क्रिश्चियनिटी को दबा दिया जा रहा था, वहां पर उनसे बदसलूकी किया जा रहा था, और क्रिश्चियनिटी ठीक से फैल नहीं पा रही थी। इस कारण वहां के जो बिशप थे वो बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो सैन फ्रांसिस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और खुद वहां गए और वहां पर प्रचार प्रसार करने लगे प्रभु यीशु के वचनों को। वो वहां पर गए, और वहां जाने के क्रमवश उनमें और एक चीज जो हमें सीखने को मिलती है वो है उनका निडरता, और वो है उनका साहस। उनमें बहुत सारा साहस था और बहुत निडर थे। ये चीज हम सीख सकते हैं। पर्सनली मैं तो ये चीज सीखूंगा ही, और इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग में जब वो वहां गए तो वहां ओनली 20 परिवार थे, बट जब सबको इनवाइट किया गया और सैन फ्रांसिस डी साल ने जब सबको बुलाया तो ओनली एक ही परिवार आया। अंत में उन्होंने ढेर सारी तरीके आजमाए कि सब परिवार आए, सब जुड़े, और इससे हमें और एक चीज सीखने को मिलती है वहां, और वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक बहुत ही जरूरी चीज है हम युवाओं के लिए भी, स्पेशली मेरे लिए भी। मैं तो क्रिएटिव बनना चाहूंगा, उनसे ये सीख लेना चाहूंगा। तो जब सैन फ्रांसिस डी साल वहां गए, जब वहां एक ही परिवार था और जब वहां ढेर सारी मेहनत किया, तब जाते जाते उन्होंने वहां पर कुल 40,000 लोगों को क्रिश्चियनिटी बता चुके थे, सिखा चुके थे और उनको फॉलो करवाया। और इस कारणवश उन्हें वहां पर एक नाम भी दिया गया वहां के लोगों के द्वारा, और वो था अपोस्टल ऑफ शेवरले। तो इन सब चीजें हमें उनके यूथ में सीखने को मिले, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो चलिए हम चलते हैं थर्ड पार्ट में, जो कि है उनका बुढ़ापा। बुढ़ापा में वे बहुत ज्यादा मेहनती मतलब इसलिए कहना चाहूँ क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, उनको ढेर सारी बीमारियां आ रही थी, उनको दर्द रहता था। वो सुबह से शाम तक अपना सारे जिंदगी प्रीच करने में ही व्यतीत कर दिया करते थे, पर ये सबों को छोड़ के वे क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने में व्यस्त रहे। ये सब छोड़ के वो मेहनत करते गए। और यहाँ पर उनसे एक चीज सीखने को और मिलती है, वो चीज है वो सभी लोगों को कॉमन समझते थे और सब लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे। उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिवोट लाइफ।
इसमें उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है कि वो स्कॉलर्स के लिए नहीं, वो रिलीजियस लोगों के लिए नहीं, बल्कि कॉमन पीपल लोगों को समझ में आए। तो इस बुक को लिखने का मकसद उनका यही था कि वो कॉमन पीपल तक पहुंच सके। और इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि वो किस तरह सबों को कॉमन लेके चलते थे, सबका आदर करते थे और सबको एकजुटता रखते थे। वो अपने अंतिम समय में जब मर रहे थे, अपने मृत्यु में थे, तब वो प्रभु यीशु का नाम लेते हुए मरे। तो यहाँ पर लास्ट पार्ट में हम उनसे सीख सकते हैं कैसे मेहनती रहना है, मेहनत करना है, अपने जीवन को किस तरह से प्रभु यीशु को समर्पित करना है और लास्ट तक हमें प्रभु यीशु को शरण में रहना है। तो ऑल ओवर अगर समराइज किया जाए तो उनसे ढेर सारी चीजें सीखने को मिलती है बचपन से बुढ़ापे तक। पहला है उनका फोकस्ड रहना, दूसरा है उनका चैलेंजिंग नेचर, उनका निडरतापन और बहुत ही साहस और एक साइन जो हमें हमेशा लेके चलना है। और तीसरे पार्ट में हमें सीखने को मिलती है वो मेहनती और प्रभु में लीन रहना। ये सारी चीजें मैं अपने जीवन में लाना चाहूंगा और यही सारी चीजें मैं सेंट फ्रांसिस डी सेल से सीखा हूँ। और इसी के साथ मैं आप सबों का धन्यवाद कहना चाहूंगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे। जय यीशु। यीशु, मेरा नाम रीमा है और मैं सेंट पीटर एंड पॉल चर्च पैरिश से हूँ, फ्रॉम दिल्ली प्रोविंस। Have patience with all things, but first of all with yourself is a famous quote saying by Saint Francis de Sales, which encourages everyone and very especially to the people like us youth to do not lose courage in considering our own imperfections, but instantly set our about to begin our day with new tasks every day. It teaches us that we should never confuse our mistakes with the values, as we are human beings. We are always precious and king or queen in the eyes of our Almighty Jesus Christ. Thank you. सबों को जय यीशु और प्रेज द लॉर्ड। और आज हम अनिकेत मीन्स आज आप लोगों को सेंट फ्रांसिस डे सैल के बारे में बताना चाहते हैं और उनका वर्ड और उनका लाइफ किस तरह से मेरे को मुझको अफेक्ट किया है उस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। और आज मेरे पास एक नोट है जिसमें मैं उनके लाइफ का कुछ समरी लिख के आया हूँ, जो जिसके थ्रू आज हम बताएंगे कि मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आए और क्या आपको वो चेंजेस लाना ज़रूरी है। सेंट फ्रांसिस डे सैल जो थे, ही वॉज बॉर्न इन जेनीवा स्विट्ज़रलैंड एट अगस्त 21, 1567। उनका जन्म जनीवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। वो बहुत ही हम्बल और इंटेलिजेंट आदमी थे बचपन से ही, और उनको गॉड को सर्व करने का मन बहुत ही पहले से बचपन से ही था। अपना फर्दर जो स्टडीज़ है वो एक्वायर किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, जहाँ से वो फिजियोलॉजी और थियोलॉजी का डिग्री हासिल करके वहाँ से वो वापस घर आए थे। नाउ द थिंग इज़ दैट उनके लाइफ में सबसे चेंजिंग मोमेंट क्या था, जब वो अपने कॉलेज में जहाँ पर वो थे, वो पेरिस में थे, हॉस्टल में थे, वो वहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे एंड वो हॉर्स राइडिंग सीख रहे थे वहाँ जस्ट बिकॉज उनके पापा को इम्प्रेस करने के लिए। तो जिस दिन वो हॉर्स राइडिंग सीखना शुरू किए थे उस दिन वो उनके साइड पे एक स्वॉर्ड रहता था। नाउ दैट स्वॉर्ड मतलब कि जब भी वो हॉर्स राइड करते हुए 3 टाइम गिरे, मतलब कि तीनों टाइम उनका क्रॉस ज़मीन में लैंड करता है तो वो एक क्रॉस फॉर्म करता है। नाउ जस्ट लुक एट दैट इट हैज़ फॉर्म ए क्रॉस। तो उसी समय उसको एक निशान मिल गया, एक इशारा मिल गया कि गॉड उसको क्या यूज़ करना चाह रहा है। नाउ द थिंग इज़ दैट ही वॉज रिटर्निंग होम। वो जब घर वापस आया तो उसको शादी करने के लिए बोला गया, तो वो शादी करने से मना कर देते हैं। ही टेल्स कि मेरे को गॉड को सर्व करना, डोंट वांट टू मैरी। अपने पापा के अगेंस्ट जाके वो एक प्रीस्ट का उपाधि प्राप्त करते हैं। 1593 में जिनीवा के बिशप उनको प्रीस्टहुड करार देते हैं, मतलब कि वो प्रीस्टहुड में एंटर कर जाते हैं 1593। नाउ उनके गांव के जस्ट बगल में शेबले, गांव का नाम था शेबले। शेबले के विलेज में क्रिश्चियंस को बहुत सताया जा रहा था और वो यही चीज़ के लिए वो माने जाते हैं बिकॉज उसके बगल के गांव में क्रिश्चियन को सताया जा रहा था, क्रिश्चियंस को मारा जा रहा था और वहाँ पर जो भी पास्टर जाते थे, जो भी प्रीस्ट जाते थे, उनको भी भगा दिया जाता था वहाँ से।
सो इट वॉज़ वेरी टफ टाइम फॉर द क्रिश्चियंस लिविंग देयर। और वो वहाँ के जो बिशप थे वो बार बार एक नए प्रीस्ट को वहाँ भेजते थे, जो कि प्रीस्ट डर के मारे वापस आ जाता था।